I hope you all are doing good. Let's start today's chapter more on PowerPoint 2010. Chapter outline: inserting a table, entering data in a table, table tools, formatting a table style, aligning text in a table, charts, components of a chart, inserting a chart, changing the chart type and formatting a chart. Microsoft PowerPoint is a powerful presentation tool. It helps us to communicate our views and ideas effectively using diagrams, photos, chart, clip art, sounds, colors, designs, and animated special effects. PowerPoint provides additional features to organize the information in a tabular format. A table is a grid of cells arranged in rows and columns. In this lesson, we will learn how to insert a table, apply a table style, and format the table using various commands. Okay. Microsoft PowerPoint आपका actually powerful presentation tool है. You know that already. Okay. इससे आप अपने views और ideas को effectively लोगों तक पहुंचा सकते हैं. Diagrams का use करते हुए आपका photos है, आपके पास chart है, clip art है, sound, colors and special animal effects भी हैं. Right? तो ये आपका एक additional फीचर है आपका पावरपॉइंट जो एक एडिशनल फीचर प्रोवाइड करता है जिससे हम अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक टैबुलर फॉर्मेट में. ओके तो टेबल एक ग्रिड होती है सेल्स की जो अरेंज होती है रोज एंड कॉलम्स में. तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले कि किस तरह से हम टेबल इंसर्ट करते हैं, टेबल स्टाइल अप्लाई करते हैं एंड टेबल को फॉर्मेट करते हैं यूजिंग वेरियस कमांड्स. ओके नोट which type of slide layout appears by default while opening Microsoft PowerPoint. ओके यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि किस टाइप की स्लाइड लेआउट आपकी अपीयर होती है बाय डिफॉल्ट जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट को ओपन करते हैं. ओके तो इसका आंसर आई एम श्योर आपको पता होगा. ओके इसका आंसर आप खुद से करेंगे. इंसर्टिंग अ टेबल. टू इंसर्ट अ टेबल, क्लिक ऑन द न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन एरो ऑन द होम टैब. Select the title and content layout as shown in figure 5.1. Click on the insert table icon present on the slide as shown in figure 5.1. The insert table dialog box will appear. Define the number of columns and rows. Click on OK. A table will be displayed according to the defined rows and columns. Okay. अब देखिए आपको किस तरह से टेबल को इंसर्ट करना है. सबसे पहले हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे. ओके फिर हम टाइटल एंड कंटेंट लेआउट को सिलेक्ट करेंगे. ओके फिर इंसर्ट टेबल, ये जो आपका आइकन है इस पे क्लिक करेंगे. अभी आपके पास इंसर्ट टेबल ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया. इसमें आपको नंबर ऑफ रोज, देखिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं. आपको कितनी नंबर ऑफ रोज चाहिए, कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए, आपने वो डिफाइन करना है. देन क्लिक करेंगे ओके. अब देखिए अब आपकी टेबल डिस्प्ले हो गई है ना, जितने हमने रोज एंड कॉलम्स डाले थे उसके अकॉर्डिंग. स्मार्ट टिप: we can insert a table in a slide by clicking on the table option on the insert tab. A menu will appear. Drag the mouse over the table grid to select the number of columns and rows we want in the table. Intersection of a row and a column is called a cell. Click on the insert tab and select table, then draw table option to draw a table. देखिए हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं स्लाइड में. हमने सिर्फ जस्ट क्लिक करना है टेबल ऑप्शन पे जो आपके इंसर्ट टैब में आएगा. तो एक मेन्यू अपीयर होगा, माउस को ड्रैग करेंगे ओवर द टेबल ग्रिड जिससे कि आपकी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज आपके सिलेक्ट हो जाएंगे जो हम टेबल में चाहते हैं. ओके एंड आपको पता है आपने पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो इंटरसेक्शन होता है रो एंड कॉलम का उसे हम कहते हैं सेल. इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे टेबल, देन ड्रॉ टेबल ऑप्शन to draw a table. Okay, entering data in a table. After inserting table in a slide, follow the steps given below to enter column heading or row entries. Place the mouse pointer in the first cell of the table and type heading. Press the tab key to take the insertion point to the next cell. Type heading for the next cell. Move the cursor to insert data in the other cells of the table using either the mouse or the tab or arrow keys. After typing data in the table, click anywhere outside the table. अच्छा देखिए अब आपने टेबल इंसर्ट कर दी है. अब इसके बाद बारी आती है उसमें डेटा को एंटर करने का. कैसे करेंगे? सबसे पहले आपकी जो टेबल है इसके फर्स्ट सेल पे आप माउस पॉइंटर को रखेंगे. ओके और फिर हेडिंग टाइप करेंगे. कुछ भी आप इसमें हेडिंग देख सकते हैं. फिर आपने टैब की को प्रेस करके रखना है. इंसर्शन पॉइंट आपका चले जाएगा नेक्स्ट सेल पे. ओके अब नेक्स्ट सेल पे आपने हेडिंग टाइप करनी है. फिर कर्सर को मूव करना है. हम डेटा को इंसर्ट करेंगे. या तो आप माउस की हेल्प से ले सकते हैं, माउस की हेल्प से भी आप कर सकते हैं, या टैब या फिर एरो की से. ओके उसके बाद अब देखिए हमने अपना डेटा टाइप हमारा हो चुका है. अब हम कहीं पे भी क्लिक कर देंगे टेबल के आउटसाइड. ओके
Note, press F1 key to open the help window in Microsoft PowerPoint 2010. Okay, अगर आप प्रेस करेंगे F1 की को तो आप हेल्प विंडो जो है ना आपकी वो ओपन हो जाएगी. Okay. Smart tip number 1. To edit data in a table, click on the cell to be modified and make changes in it. 2. To insert new rows in a table, place the cursor in a cell, click the right mouse button, a shortcut menu appears. Select the insert option and click either on the insert rows above or insert rows below sub option. We can select any of these options from the layout tab also. देखिए, अगर आपको डेटा को एडिट करना है टेबल में तो आप क्लिक करेंगे सेल पे जिसको मॉडिफाई करना है. ओके, फिर चेंजेस करेंगे. आपको रोज अगर इंसर्ट करनी है टेबल में तो आप क्या करेंगे, सेल पे कर्सर रखेंगे, फिर राइट माउस बटन को क्लिक करेंगे, शॉर्टकट मेन्यू आपका आएगा. ओके, फिर सिलेक्ट करेंगे इंसर्ट ऑप्शन, फिर हम क्लिक करेंगे या तो इंसर्ट रोज अबव या इंसर्ट रोज बिलो. ये आपके सब ऑप्शन है कि आपके रो ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए. ओके, तो कोई भी हम ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं. टू अप्लाई डिफरेंट background colors, select the table by clicking anywhere on its border. Click on the shape fill button in the drawing group on the home tab. Select a color of your choice. अच्छा, अब आप चाहते हैं different background colors को apply करना. So what will you do? आप टेबल को select करेंगे, आप कहीं पर भी इसकी बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं, फिर क्लिक करेंगे शेप फिल बटन पे, ये आपके पास है ना, और कोई भी कलर अपनी चॉइस का हम चूज कर सकते हैं. 4. To delete a row or a column from a table, select the row/column we wish to delete. Click on the delete button in the rows and columns group on the layout tab. Select the required option. Okay. अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी रो या कॉलम को डिलीट करना तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं, जिस भी रो या जिस भी कॉलम को आप इसे सिलेक्ट करेंगे. ओके, फिर आप डिलीट बटन को क्लिक करेंगे. ओके, और फिर यू कैन सिलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन. Next, table tools. When we insert a table in PowerPoint 2010, a new tab, Table Tools, appears. We will find various tools and commands present on its design and layout tabs such as borders, shading, draw table, table styles, merge cells, split cells, etc. These tools are helpful while formatting a table in the slide. Okay. अब देखिए आपके पास क्या है, जब आपको ये टेबल इंसर्ट करते हैं ना पावर पॉइंट में 2010 में, तो एक न्यू टैब जिसका नाम है टेबल टूल्स वो अपीयर हो जाता है. तो इसमें आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, बहुत सारे कमांड्स मिलेंगे जो इसके डिज़ाइन एंड लेआउट टैब में प्रेजेंट होंगे. ओके, जैसे कि बॉर्डर्स है, शेडिंग्स है, और ड्रॉ टेबल, टेबल स्टाइल्स है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है. ओके, तो ये सारे टूल्स आपके लिए हेल्पफुल होते हैं जब आप कभी भी आप टेबल को फॉर्मेट करते हैं स्लाइड में. राइट. नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग अ टेबल स्टाइल. टेबल स्टाइल्स. When we insert a table, PowerPoint automatically applies a table style to the table. We can view various styles in the Table Style group on the Design tab under the Table Tools tab. To apply a table style, follow the given steps. Select the table, click on the Design tab to access all the table styles and other options of this tab. Hover the cursor over any table style to see its live preview on the slide. Click on the More drop-down arrow of the Table Styles group to view all the options. Click on the desired style to select it. अच्छा देखिए, जब कभी भी आप टेबल इंसर्ट करते हैं ना तो पावरपॉइंट ऑटोमेटिकली एक टेबल स्टाइल को अप्लाई कर देता है टेबल में, है ना. तो हम बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स जो हैं टेबल के उनको हम ऐड ऑन कर सकते हैं. ओके, तो हम अगर आपको व्यू करना है तो इसके लिए आप जाएंगे टेबल स्टाइल ग्रुप में. ओके, अब देखिए टेबल स्टाइल को हमें अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. उससे पहले हम स्मार्ट टिप पढ़ते हैं. स्मार्ट टिप. टू अप्लाई टेबल स्टाइल इफेक्ट, सेलेक्ट द रोज और कॉलम्स इन द टेबल टूल्स टैब, क्लिक ऑन द डिजाइन टैब, टेबल स्टाइल ग्रुप एंड इफेक्ट्स ऑप्शन. देखिए, अगर आपको टेबल स्टाइल इफेक्ट को अप्लाई करना है तो आपको सबसे पहले रोज या जो कॉलम्स है वो सिलेक्ट करना है. फिर आप टेबल टूल्स टैब में जाएंगे, क्लिक करेंगे डिजाइन टैब पे, स्टाइल, टेबल स्टाइल ग्रुप, देन इफेक्ट्स ऑप्शन. ओके, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम टेबल स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहले you need to select the table. Okay, so table select करने के बाद we will click on design. Okay, अब कर्सर को आप होवर कीजिए कोई भी टेबल स्टाइल के ऊपर, है ना, इसका लाइव प्रीव्यू नजर आएगा. फिर आप क्लिक करेंगे मोर ड्रॉप डाउन एरो पे. अब देखिए इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं. कोई भी स्टाइल जो आपको चूज करना है, जो आपको पसंद आ रहा है, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं. देन इस पे हम क्लिक कर देंगे. ओके, फैक्ट फाइल. To erase a line of a table, click on the eraser tool in the Draw Borders group on the Design tab of Table Tools tab.
Position the mouse pointer on the line that we want to erase and click on it. देखिए, अगर आप चाहते हैं टेबल की लाइन को इरेज करना तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे इरेजर टूल पे, जो आपके ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रुप में आता है, ठीक है। फिर आप माउस पॉइंटर को पॉइंट करेंगे, पोजीशन करेंगे लाइन पे जिसे आप इरेज करना चाहते हैं, और इसके बाद हम इसे क्लिक करेंगे तो इरेज हो जाएगा। ओके, टू चेंज टेबल शेडिंग, select the table, click on the design tab, select the rows or columns that you want to modify. Then click on the shading option in the table styles group and select any color of our choice. We can also select any other option from the drop down list of shading command. देखिए, अब आपको टेबल शेडिंग चेंज करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम क्लिक करेंगे डिजाइन टैब पे। ओके, अब इसमें हमें रोज एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करना है जिन्हें हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। फिर आप क्लिक करेंगे शेडिंग ऑप्शन पे, कोई भी कलर आप अपनी चॉइस का सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा हमें पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं जो शेडिंग कमांड से आपको मिलेंगे, राइट। स्मार्ट टिप, टू चेंज द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर लाइन सिलेक्ट द टेबल, अंडर द टेबल टूल्स टैब क्लिक ऑन द डिजाइन टैब, ड्रॉ बॉर्डर्स ग्रुप, पेन वेट टूल, select any border width from the drop down list. The pointer changes to pencil tool, drag the pointer over the border line and release the button. अच्छा देखिए, आपको ना बॉर्डर लाइन की थिकनेस को चेंज करना है। आप क्या करेंगे, टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर आपके पास जो टेबल टूल्स टैब है उसमें आपके पास डिजाइन टैब है, उस पर आप क्लिक करेंगे, ड्रॉ बॉर्डर्स, देन पेन वेट टूल, कोई भी बॉर्डर विड्थ आप इसमें से जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें से चेक कर सकते हैं, जो आपको चाहिए कोई भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं। ओके, एंड देन व्हाट विल, ये जो पॉइंटर है पेंसिल टूल में चेंज हो जाएगा, पॉइंटर को ड्रैग करना है ओवर द बॉर्डर लाइन और फिर बटन को रिलीज कर देना है, और इस तरह से आपका जो थिकनेस है बॉर्डर लाइन का वो आपका जो हमने चूज किया है वो चेंज हो जाएगा। टू अप्लाई बॉर्डर, Microsoft PowerPoint allows us to add border to a table. Border helps to improve the appearance of a table. Select the cells or rows or columns we want to modify. Click on the drop-down arrow next to the Borders button in the Table Styles group on the Design tab. Select the All Borders option from the drop-down menu. Border will be applied on the selected cells, rows or columns. Okay, अब आपको क्या करना है कि बॉर्डर अप्लाई करना है टेबल पे, राइट। तो आप क्या करेंगे, और वैसे हम बॉर्डर क्यों अप्लाई करते हैं, जिससे कि टेबल का जो अपीयरेंस है उसको एनहांस हो सके, वो इम्प्रूव हो सके, राइट। तो सबसे पहले व्हाट विल यू डू, जो भी सेल, रो या कॉलम आपको मॉडिफाई करना है सबसे पहले हम उसे सिलेक्ट करते हैं, राइट। ओके, तो आफ्टर सिलेक्टिंग अब आप क्या करेंगे, बॉर्डर्स के नेक्स्ट ड्रॉप डाउन एरोस को क्लिक करना है। ओके, फिर देखिए ये जो ऑल बॉर्डर्स ऑप्शन है इनमें से आपने सिलेक्ट करना है, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे ये बॉर्डर आपकी अप्लाई हो जाएगा। ओके, टू चेंज द बॉर्डर कलर, द पेन कलर टूल इज यूज्ड टू चेंज द सेल्स, रोज, कॉलम्स बॉर्डर कलर। Select the table, click on the pen color button in the draw border group on the design tab. A color palette appears. Choose the required color. The mouse pointer changes to a pencil shape. Click on the border whose color we wish to change or simply drag the mouse on the cell border and release the button. The line color will be changed. Okay, अब आप चाहते हैं कि आप बॉर्डर का कलर जो है उसको चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, आपके पास ये पेन कलर टूल जो है इसकी हेल्प से हम करते हैं। ओके, सबसे पहले what we need to do is we will select the table, फिर ये जो ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप है इसमें आपके पास पेन कलर बटन है आइकन, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा देखिए अब कलर पैलेट अपीयर हो गया, कोई भी कलर आप इसमें से चूज कर सकते हैं। अब माउस पॉइंटर आपका चेंज हो गया पेंसिल शेप में। ओके, अब आप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे जहां पे आप चाहते हैं कलर को चेंज करना। ओके, या सिंपली आप माउस को ड्रैग कर सकते हैं सॉलिड बॉर्डर पे और बटन को रिलीज करेंगे, और ये देखिए आपका लाइन कलर जो है आपका चेंज हो गया। ओके, टू चेंज द लाइन स्टाइल, पेन स्टाइल टूल इज वेरी हेल्पफुल इन चेंजिंग द लाइन स्टाइल ऑफ अ टेबल। Select the table and click on the pen style list box on the design tab under the table tools tab. A drop down menu appears. Select the required style. The mouse pointer changes to a pencil. Place the mouse pointer on any border of the table and click on it or drag the mouse pointer on it. Observe the change. Okay, अब आपको क्या करना है, लाइन स्टाइल को चेंज करना है। अब पेन स्टाइल टूल इसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो सबसे पहले व्हाट विल यू डू, हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर आपके पास ये जो पेन स्टाइल लिस्ट है इस पर क्लिक करना है। ओके,
अब ये देखिए मेन्यू अपीयर हो गया है। कोई भी स्टाइल जो आपको चाहिए इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब माउस पॉइंटर आपका चेंज हो गया पेंसिल में। ओके, अब आप टेबल की बॉर्डर पे इसको रखेंगे, क्लिक कर देंगे। अब देखिए आपके चेंजेस। Aligning text in a table. Alignment refers to the positioning of text in a table cell, row or column. By default, the text is aligned to the top of a cell. We will find 6 alignment buttons on the Layout tab, which are Align Text Left, Center, Align Text Right, Align Top, Center Vertically, and Align Bottom. Select the cells or rows or columns whose text alignment we wish to change. Click on the Center Vertically button in the Alignment group on the Layout tab. Observe the change in the text alignment. Likewise, we can select any alignment from the given choices. Okay. अच्छा, alignment का मतलब क्या होता है कि जो text की positioning है टेबल में, सेल में, आपके रो कॉलम में किस तरह से है। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो है आपका टेक्स्ट अलाइन होता है सेल के टॉप पे। ओके, आपके पास ना लेआउट टैब में आपके पास 6 अलाइनमेंट बटन्स होते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके पास ये 6 टाइप ऑफ अलाइनमेंट देखे हैं, जैसे कि अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट है, सेंटर है या राइट है, या टॉप, सेंटर वर्टिकली या बॉटम, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने सेल, रो, कॉलम जहाँ पे आप अलाइनमेंट जो है चेंज करना चाहते हैं उसे आप सिलेक्ट करेंगे। ओके ओके, सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक करेंगे सेंटर वर्टिकली बटन पे। ओके, अब देखिए आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज हो गया है ना। इसके अलावा हम कोई भी अलाइनमेंट इन 6 ऑप्शंस में से आप चूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, चार्ट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. Chart is an effective way to display data in a graphical and pictorial form. Charts make it easier to show comparisons and growth, relationship among the values and trends in data. They provide an accurate analysis of the information. When we insert a chart, the data is displayed in a special window called data sheet. The chart gets updated automatically with any change in the data. देखिए, चार्ट से आप लोग फेमिलियर हैं तो ये काफ़ी इफेक्टिव वे होता है कि अपने डेटा को हम डिस्प्ले करें ग्राफिकल या पिक्टोरियल फॉर्म में, राइट। तो चार्ट्स की हेल्प से ना कंपैरिजन करना काफ़ी इजी हो जाता है। जो रिलेशनशिप्स होती हैं वैल्यूज़ एंड ट्रेंड्स के बीच में, उनको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो एक इन्फॉर्मेशन का ना एक्यूरेट एनालिसिस हमें देते हैं। तो जब कभी भी हम चार्ट को इंसर्ट करते हैं तो डेटा आपका डिस्प्ले होता है एक स्पेशल विंडो में, जिसे कहा जाता है डेटा शीट। ओके, और जैसे ही आप डेटा में कुछ भी चेंज करते हैं तो चार्ट में वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। Component of a chart. 1. Chart area. The chart area includes a complete area and all the objects in a chart. 2. Category axis. Category axis or x-axis is a horizontal axis. The subject of analysis is plotted against x-axis. तो देखिए कुछ चार्ट्स के आपके कंपोनेंट्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें चार्ट एरिया की, तो इसमें आपका जो कंप्लीट एरिया आता है ना, उसको कहते हैं हम चार्ट एरिया। देन आपका पास कैटेगरी एक्सेस है, जो आपका एक्स एक्सिस भी जिसे हम कहते हैं, जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है। ओके, तो जो भी सब्जेक्ट होता है एनालिसिस का, उसको प्लॉट किया जाता है अगेंस्ट एक्स एक्सिस। 3. वैल्यू एक्सिस. वैल्यू एक्सिस और वाई एक्सिस इज अ वर्टिकल एक्सिस दैट इज यूज्ड टू प्लॉट द वैल्यूज। इसी तरह से आपका जो वैल्यू एक्सिस, जिसे हम वाई एक्सिस भी कहते हैं, ये आपका वर्टिकल एक्सिस होता है। ओके, जिसमें हम वैल्यूज को प्लॉट करते हैं, राइट। Number 4, data series. Data series are the bars, slices or other elements that show the data values. Number 5, category name. The category names are the labels displayed on X and Y axis. Okay. अब data series आपके क्या होते हैं? बार्स हो गया या स्लाइसेस हो गया, कोई भी एलिमेंट जो डेटा वैल्यूज को शो करता है। जबकि कैटेगरी नेम आपके लेबल्स होते हैं जो आपके एक्स और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेड होते हैं, राइट। 6. प्लॉट एरिया. Plot area is a window within the chart area. It contains the actual chart itself and includes the plotted data, data series, category axis and value axis. अब plot area आपका विंडो है चार्ट एरिया के विदिन। ओके, इसमें आपका एक्चुअल चार्ट भी होता है और आपके प्लॉटेड डेटा भी इंक्लूडेड होता है, डेटा सीरीज है, कैटेगरी एक्सिस एंड वैल्यू एक्सिस, राइट। 7. Legend. It depicts the colors, patterns or symbols that are assigned to the data series. Okay. अब ये ना कलर, पैटर्न और सिंबल जो कि आपके डेटा सीरीज को असाइन किए रहते हैं, वो शो करता है, राइट। स्मार्ट टिप. We can also insert a chart in any slide by using the chart button present on the insert tab in the illustrations group. आप ना अपने चार्ट में, स्लाइड में ना चार्ट ऐड कर सकते हैं। आपके पास ये जो चार्ट बटन है ना, ये ऑप्शन है आपका प्रेजेंट होता है इलस्ट्रेशंस ग्रुप में। ओके,
नंबर 8, चार्ट टाइटल. इट डिस्क्राइब्स द एम एंड कंटेंट ऑफ द चार्ट. अब चार्ट टाइटल क्या होता है कि वो डिस्क्राइब करता है कि व्हाट इज द एम ऑफ द चार्ट एंड व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द चार्ट, राइट. नंबर 9, grid lines. These can either be horizontal or vertical lines depending on the selected chart type. They extend across the plot area of the chart. They make it easier to read and understand the values. अब ये जो grid lines होती हैं, आपकी ये lines होती हैं, वो आपकी horizontal भी हो सकती हैं, आपकी vertical भी हो सकती हैं. वो depend करता है कि आपने कौन सा chart type select किया है, right? Inserting a chart. To insert a chart on a slide, follow these steps. Click on the layout button present on the home tab and select title and content layout from the drop-down menu. Select the click to add title, placeholder and type annual assessment. Click on the insert chart icon on the slide. The insert chart dialog box appears. Select the chart type in the left pane and the subtypes of the selected chart will be reflected on the right pane. Select the column chart and click on OK. The chart will be displayed with a data sheet that contains the default data. We can replace the default data with our own data. To delete all the data from the data sheet, move the mouse pointer to the blank button, upper left corner of the column indicators. The mouse pointer changes into a large plus sign of white color. Click on the button. The entire data sheet will be selected. Press the delete key. Click the cell beneath column B, that is B1. Type maths. Press the tab key. Type physics. Press the tab key. Type chemistry and press the enter key. Next, click the cell adjacent to the row 2 header, that is A2. Type A. Press the down arrow key. Type B. Press the down arrow key and type C and then D in the next row. Click the cell B2 and type 89. Press the tab key and type 87. Similarly, type the entire data as shown in figure 5.6. As we enter the data, the chart gets plotted automatically. To close the data sheet, click on the close button on the title bar of the data sheet. Okay. Now what you have to do is, अब आपको क्या करना है, आपको चार्ट इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, राइट. तो उससे पहले हम फैक्ट फाइल को पढ़ते हैं. Fact file, to add, edit, remove series, change the chart data range, etc. First select the chart and click on the select data button in the data group on the design tab. Here we can select the required option from the select data source dialog box to make desired changes in the chart. देखिए, अगर आपको ऐड करना है, एडिट करना है, ये रिमूव करना है सीरीज को, चार्ट डेटा रेंज को चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको चार्ट सिलेक्ट करना है. देन आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट डेटा बटन पे. आप यहाँ से रिक्वायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्ट डेटा सोर्स से, राइट. और जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो आपके अकॉर्डिंग, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट करेंगे और वो चेंजेस हो जाएंगे, राइट. चलिए, अब आपको देखिए चार्ट इंसर्ट करना है स्लाइड पे, तो उसके लिए स्टेप्स है. सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेआउट बटन पे आपने क्लिक करना है. ओके, फिर हम सिलेक्ट करेंगे टाइटल एंड कंटेंट. फिर आप सिलेक्ट करेंगे क्लिक टू ऐड टाइटल, है ना, और यहाँ पे आप टाइप करेंगे एनुअल असेसमेंट, राइट. नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे इंसर्ट चार्ट आइकन, ये जो आपके पास आइकन है ना. अब ये देखिए डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया. चार्ट टाइप को आप सिलेक्ट कर लीजिए. फिर कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करना है, देन ओके. अच्छा देखिए, अब चार्ट आपका डिस्प्ले हो गया एक डेटा शीट के साथ जिसमें डिफॉल्ट डेटा है. आप चाहें तो इस डिफॉल्ट डेटा को अपनी डेटा के साथ चेंज कर सकते हैं. ओके, तो इसको डिलीट करने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, माउस पॉइंटर को, ये ब्लैक बटन है ना अपर लेफ्ट कॉर्नर में आपका, इस पे आप लेकर आएंगे. ओके, अब देखिए एक बड़ा सा प्लस साइन आ गया आपका, है ना. बटन पे क्लिक करना है, आप पूरी डेटा शीट आपकी सिलेक्ट हो गई है. नाउ वील प्रेस डिलीट की. ओके, और आप इसे डिलीट कर देंगे. नाउ अब आपके पास कॉलम भी है, यानी कि B1. इसमें हम टाइप करेंगे मैथ्स. फिर टैब की को प्रेस करेंगे, फिर हम प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे फिजिक्स, देन टैब, देन केमिस्ट्री एंड देन एंटर की. ओके, अब देखिए आपका ये जो A2 है, टाइप करेंगे A, डाउन एरो की, देन B, देन
C एंड D। इसी तरह से सेल B2 में टाइप करेंगे हम 89, देन 87, ओके। और ये जो भी डेटा आपको दिया गया पूरा इंटायर डेटा यू नीड टू टाइप, ओके। अच्छा देखिए, जैसे जैसे हम एंटर करें ना डेटा, आपका जो चार्ट है वो ऑटोमेटिकली प्लॉट होता जा रहा है, ओके। अब इसको क्लोज करने के लिए हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, है ना, और ये आपका क्लोज हो गया, राइट। चेंजिंग द चार्ट टाइप, we can change the chart type as needed. To change the chart type, select the chart, click on the design tab under chart tools. Click on the change chart type button in the type group. The change chart type dialog box will appear. Select any chart type and click on OK. The chart will change accordingly. अच्छा, अब आप चाहते हैं कि चार्ट टाइप को चेंज करना, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने चार्ट को सिलेक्ट करना है, फिर क्लिक करेंगे डिजाइन टैब पे, फिर क्लिक करेंगे चेंज चार्ट टाइप बटन पे। अब चाहिए देखिए डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। आप कोई भी चार्ट टाइप आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, देन क्लिक करेंगे ओके, और देखिए ये चार्ट हमारा चेंज हो गया, ओके। नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग अ चार्ट. Formatting improves the appearance of a chart. We can format the chart to add title, change the text, font, line, color, width, border style, legends, data series, etc. When we insert a chart, the 3 new tabs appear on the ribbon: Design, Layout, and Format. These tabs containing various chart tools and commands that allow us to modify and format the chart. Okay. अब फॉर्मेटिंग की बारी आती है। फॉर्मेटिंग से क्या होता है कि हम चार्ट के अपीयरेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। हम जैसे कि क्या कर सकते हैं, टाइटल ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट, लाइन, कलर, विड्थ, ये सारी हम चीज़ें चेंज कर सकते हैं। तो जब कभी भी हम चार्ट इंसर्ट करते हैं तो 3 न्यू टैब्स ना आपकी अपीयर होती है रिबन पे। वो है आपके डिज़ाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। तो इनमें आपके बहुत सारे चार्ट टूल्स होते हैं, कमांड्स होते हैं, जिसकी हेल्प से हम चार्ट को मॉडिफाई एंड फॉर्मेट कर सकते हैं, राइट। Note, splitting a cell means dividing the cell further into separate cells, rows or columns. Place a pointer on any cell and select the split cells tool in the layout tab. To combine the data in a single cell, use merge cells option in the layout tab. देखिए, splitting cell का मतलब क्या है कि सेल को फर्दर आपका डिवाइड करना सेपरेट सेल्स में या रोज में या कॉलम्स में, ओके। तो आपने पॉइंटर को प्लेस करना है किसी भी सेल में और फिर स्प्लिट सेल को सिलेक्ट करना है, ओके। फिर डेटा को आप चाहते हैं कि एक सिंगल सेल में वो कंबाइन हो जाए, तो उसके लिए आप मर्ज सेल ऑप्शन का यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट, मॉडिफाइंग द चार्ट लेआउट. द चार्ट लेआउट डिटरमिन्स हाउ स्पेसिफिक चार्ट इंफॉर्मेशन विल अपीयर. टू चेंज द चार्ट लेआउट, select the chart and click on the design tab. Scroll through the option in the chart layout group or click on the more drop down arrow to see all the available chart layout options at once. Select the required chart layout. अच्छा देखिए, अब आपको चार्ट लेआउट आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चार्ट को सिलेक्ट करेंगे, देन विल क्लिक ऑन डिजाइन टैब, ओके। उसके बाद देखिए ऑप्शंस आपके पास हैं चार्ट लेआउट ग्रुप में। आप यहाँ पे से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, राइट। कोई भी लेआउट आपको जो चूज करना है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट, एडिशनल चार्ट फॉर्मेटिंग. Use the tools on the Format tab to modify the chart in various ways. Using this tab, we can change the chart outline, format, the chart text and more. देखिए, ये आपका जो आपके फॉर्मेट टैब में टूल्स उसका यूज़ कर सकते हैं। हम चार्ट को बहुत तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस टैब का यूज़ करते हुए हम चार्ट की आउटलाइन चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं चार्ट का टेक्स्ट और भी बहुत कुछ, राइट। चेंजिंग द शेप, स्टाइल्स एंड कलर्स. Quick styles for lines include line styles, gradients, various effects, and shadow. Select the line that we want to change. Select any quick style from the shape styles group on the format tab under chart tools. To view more quick styles, click on the more button and select the desired style. देखिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे शेप स्टाइल से कलर चेंज करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लाइन को सिलेक्ट करना है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं, राइट। इसके बाद आपके पास है शेप स्टाइल ग्रुप में आप कोई भी क्विक स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके। और अगर आपको और ज़्यादा क्विक स्टाइल्स चाहिए तो आप मोर बटन पे क्लिक करेंगे एंड जो भी स्टाइल आपको पसंद आ रहा है आप उसे सिलेक्ट करेंगे, ओके। स्मार्ट टिप,
To start a slideshow, press F5 or select slideshow tab, then from beginning. आप चाहते हैं स्लाइड शो को स्टार्ट करना, तो उसके लिए आप F5 की को प्रेस करेंगे, फिर स्लाइड शो को सिलेक्ट करेंगे, देन फ्रॉम बिगिनिंग को सिलेक्ट करेंगे. ओके. Note, likewise we can change the background color, outline and effect by using the shape fill, shape outline and shape effect options respectively in the shape styles group. After closing the data sheet, if you want to make any correction or modification in data, we can reopen it through chart tools, then design tab, data group, exit data option, or right click on the chart. Select edit data option from the shortcut menu. देखिए, हम बैकग्राउंड कलर, आउटलाइन, इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं शेप फिल का यूज करते हुए, शेप आउटलाइन एंड शेप इफेक्ट रिस्पेक्टिवली, जो आपको मिलेगा शेप स्टाइल्स ग्रुप में. ओके. आपने डेटा शीट को क्लोज कर दिया है और आप चाहते हैं उसमें कोई करेक्शन या कोई मॉडिफिकेशन करना, तो आप इसे रीओपन कर सकते हैं चार्ट टूल्स के थ्रू. देन आप जाएंगे डिजाइन टैब, देन डेटा ग्रुप, देन एडिट डेटा ऑप्शन पे, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, चार्ट पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट डेटा ऑप्शन को चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. राइट. नेक्स्ट, चेंजिंग बैकग्राउंड, colors and patterns. We can modify our chart by changing its colors, patterns and background by following given steps. Right click on the chart area and select the format chart area option from the context menu. The format chart area dialog box will appear. Select the border styles, border color and shadow effect according to our choice. Click on the fill tab, then click on the picture or texture fill option from the right pane as shown in figure 5.9. Select the texture button and choose the required texture from the displayed choices. Click on the close button and observe the changes. Okay. अब देखिए, हम अपने चार्ट को ना मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, पैटर्न चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं. कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो चार्ट एरिया पे राइट क्लिक करना है. ओके. फिर आप सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट चार्ट एरिया. अब देखिए डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया. बॉर्डर स्टाइल या बॉर्डर का कलर या शेडो इफेक्ट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम इसमें से चूज करेंगे. ओके. फिर हम क्लिक करेंगे फिल टैब पे, देन पिक्चर और टेक्स्ट फिल ऑप्शन. ओके. और यहाँ से आपका सिलेक्ट करेंगे आप टेक्सचर बटन. ओके. अब जो भी आपको टेक्सचर चाहिए आप उसे चूज कर सकते हैं. देन क्लोज बटन, और देखिए ये सारे चेंजेस आपके चार्ट्स में हो गए. राइट. Recap. Microsoft PowerPoint is a powerful presentation tool. To insert a table in a presentation, select title and content from the new slide button on the home tab and click on the insert table icon present on the slide. We can apply formatting effects on a table by using table tools, design and layout tabs. Chart is an effective way to display data in a graphical and pictorial form. Chart area includes a complete area and all the objects in a chart. Plot area includes the plotted data, data series, category axis and value axis. The chart title describes the aim and contents of the chart. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, और चैप्टर की प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.